Good morning, dear students. As you know that we have completed the tennis according to structure. I will recapitulate, I will repeat for you that I have told you that tennis according to structure shows us two things. One is it gives us the time and another is it gives us a statement. And I told you that according to time, it is of three types, that is present, past and future. And according to statement, it is of four types, that is indefinite, perfect, continuous, perfect continuous. I have explained all of them. And then I told you that for we have to identify the sentence, that which type of sentence it is. For that identification of sentence, I have told you that we need two things, that is verb form. And I told you that there are four verb forms: first, second, third, and fourth. And helping verbs, I have already told that there is helping verb be. These forms are is, am, are, was, were, and have, has, had, will, and shall. These are used for identification of the tense. We can identify the sentences on the basis of these two things. Then I told you that you have to remember that which form is used in which tense. I told you that you have to remember that first form is used with present indefinite. That is, wherever you will see the first form, you can say that it is present indefinite. Then I have told you the exception. I told you that with past indefinite affirmative sentences, second form is used. Also, I have told you that in case of past perfect, two works happens. That is, past perfect is called double past. With the first work, third form is used, and with the second form, with the second work, second form is used. This I have already told you. Now, third form is used with perfect. Yani ki wherever you will see the third form, you can say, sir, it is perfect tense. And fourth form is used with continuous and perfect continuous. I have already told you that in case of perfect continuous, we also use since and for. I told you that since is used with the point of time, and for is used with the period of time. This is what I already told you. Then I have told you some rules. I told you that you have to remember that with two tenses, present indefinite and past indefinite, affirmative sentences, helping verb is not used. And with past indefinite affirmative sentences, second form of verb is used. And I told you that with past indefinite, with present indefinite, s or es is used with the verb when there is the subject he, she, or it. This is what is tennis. There is nothing more about the tennis. But I have also mentioned a very important point, that is, I told you that sometimes helping verb is used as main verb. When it is used as main verb, then there will be no main verb. For example, I told you he is eating food. Here is helping verb and eating is main verb. But if I will say he is a boy, at that time there is the he is used as main verb. This is you. This is what you have to remember. Huh. This is what you have to remember. Now we are going to start today's important, very, very important topic, which are which is necessary for your examination. That is usage of tense. यूसेज ऑफ टेंस, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है था स्ट्रक्चर। यानी कि स्ट्रक्चर का मायने है, मिसाल किसी का स्ट्रक्चर, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई टाल होता है, कोई स्मॉल होता है, कोई फैट होता है। तो वो है स्ट्रक्चर। यानी कि सेंटेंस के भी हमने यही पढ़ा है। मिसाल के लिए हमने क्या कहा है कि कोई काम आज हुई थी, कोई कल, कोई अब
मतलब कल होगी, तो वो हमें स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं टेंस का। अब हमें यूसेज है, यानी कि हम कहाँ ये यूज करते हैं। यूसेज आपको याद रखना है, जो यूसेज है वो अलग बात है और स्ट्रक्चर अलग है। कभी कभी आप स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर लिखेंगे, आपको लगे कि यूसेज से, हाँ आप तो फिर वीडियो देख सकेंगे, जो रिपीट करने के लिए कह रहे हैं कि वो फिर वीडियो भी देख सकेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको याद रखना है कि यूसेज जो है वो अलग है और स्ट्रक्चर अलग है। कभी कभी आप देखेंगे कि आपको लगे कि शायद ये सेंटेंस गलत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस कहूंगा, आपको लगेगा कि शायद सर ये गलत है, मगर वो ठीक होता है यूसेज के लिहाज से। वाजिद, हाँ क्या बात है? हेलो, आपने, मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो डिफरेंस ही कह रहा हूँ यूसेज और स्ट्रक्चर के बीच में। मैं क्या कह रहा हूँ वाजिद? मैं तो वही कह रहा, आप सुनो, आप सुनो, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है कि ये सेंटेंस क्या है, यानी कि हमें काम की है किस टाइम पर की है। जो मैंने कल भी कहा है वो हमें दिखा देगा ओनली टाइम, यानी कि काम का टाइम और क्या हमने, और इसका स्टेटमेंट जो मैंने आपको कल भी कहा है, इससे पहले भी लेक्चर्स में कहा। अब यूसेज है, अब हम ये टेंस कहाँ यूज करते हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको। मैंने आपको कहा है कि आपको लगेगा कि अगर आप यूसेज से कभी आपको लगेगा यूसेज और जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, आपको लगेगा कभी हम सेंटेंसेस को यूज करेंगे, आपको लगेगा कि स्ट्रक्चर के लिहाज से वो शायद गलत है। मिसाल के लिए मैं वही आपको कहने वाला था, मिसाल के लिए मैं आपको एक सेंटेंस कहूंगा, आपको लगेगा सर ये गलत है। मिसाल, आई एम गोइंग टू श्रीनगर टुमारो। आई एम गोइंग टू श्रीनगर टुमारो, मैं श्रीनगर जा रहा हूं कल। समझ में आ रहा है? अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो फिर इतना ही होना चाहिए, आई एम गोइंग टू श्रीनगर, यानी कि मैं श्रीनगर जा रहा हूं, यानी कि इस वक्त। अब मैंने कल लिखा है, मुझे लिखना चाहिए आई विल गो टू श्रीनगर, है ना? हेलो, स्ट्रक्चर के लिहाज से हमें लगता है ये गलत है, मगर यूसेज के लिहाज से ये ठीक है। समझ आ रहा है? यानी कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं, स्ट्रक्चर अलग है, यूसेज अलग है। स्ट्रक्चर के रूल्स अलग हैं, यूसेज के रूल्स अलग हैं। मिसाल, दूसरा सेंटेंस मैं आपको कहूंगा, मिसाल के लिए आप मेरी बात सुन रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या ये ठीक है? यू आर लिसनिंग मी, ये ठीक है? यू आर लिसनिंग मी, ये ठीक है या गलत है? आपको क्या लग रहा है? मिसाल इस वक्त, यानी कि आप मेरी बात सुन रही हो, ये ठीक है या गलत है? हाँ, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से ये ठीक है, मगर स्ट्रक्चर के लिहाज से ये ठीक है, मगर यूसेज के लिहाज से ये गलत है। यूसेज के लिहाज से ये गलत है, स्ट्रक्चर के लिहाज से हमें लग रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम लुकिंग टुवर्ड्स यू या आई एम वाचिंग यू, हमें लग रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ये ठीक है, मगर यूसेज के लिहाज से ये गलत है। समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे सर फिर यूसेज क्या है, वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि यूसेज क्या है। समझ में आ रहा है? हाँ, ओके, 1 सेकंड। अब हम स्टार्ट से करेंगे, मतलब आपने पहला टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मैंने उस वक्त भी आपको कहा इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट सिंपल। देखो अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में आपको याद रखना है, जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल, आपको मैंने पहले भी कहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने कहा है हर किसी इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। सीधी सी बात है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको कहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू या डज इस्तेमाल होता है। चलो, डू और डज। फिर मैंने कहा है कि जो डज है, डज इस्तेमाल होता है ही शी इट के साथ, ठीक है। जो डू है वो बाकी बाकी मैंने यू वी दे,
फिर मैंने आपको कहा है, आपको याद रखना है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस आर एस भी इस्तेमाल करते हैं। कब? जब जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी कि ही शी इट, उस वक्त हम एस या एस इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ। और मैंने कहा है आपको, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। ये समझ में आया? हेलो? हाँ, सबको समझ में आया? हाँ, चलो, ओके। नाउ, ओके 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 ओके, नाउ वी हैव टू सी इट इज यूसेज, जो इंपॉर्टेंट है। ये यूसेज एक्चुअली एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपको वो नहीं पूछेंगे डिफाइन इंडेफिनिट, डिफाइन प्रेजेंट, डिफाइन कंटिन्यू, नहीं नहीं नहीं। यूसेज के लिहाज से वहां सेंटेंस होइए, वो कहेंगे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, विच वन इज करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ब्स। हाँ, आप याद रखना है आपको। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूसेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। देखो, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो भी आप काम हैबिचुअल में करते हो, आदतन में करते हो, डेली करते हो, उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? मिसाल के लिए, और आपको एक सेकंड में फिर एग्जांपल्स आपको दूंगा। आपको याद रखना है, ज्यादातर ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो मैंने यहाँ ये वर्ड्स लिखे हैं, ये ज्यादातर उसके साथ इस्तेमाल होते हैं। यानी कि उसके साथ ज्यादातर, हाँ, इसके साथ ज्यादातर क्या क्या होता है? ऑलवेज, ऑफन, seldom, usually, daily, every day, every week, every month, every year, normally, twice, thrice a week। समझ में आ रहा है? यानी कि ज्यादातर उसके साथ ये चीज होती है। समझ में आया यहां तक? हाँ, अब आपको याद रखना है, मिसाल के लिए, अब मैंने क्या कहा है, मतलब जो मैंने आप कहा है मिसाल के लिए, अब एग्जाम्पल आप यहाँ कहो इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट आई वॉच टीवी डेली, I watch TV every day. I watch TV twice in a week। समझ में आ रहा है? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो आपका हैबिट होगा, जो आपका हैबिट होगा, मगर प्रेजेंट में पास्ट में नहीं, जो आपका हैबिट आज होगा। हाँ, और एक है इसका यूज, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ। क्या? यूनिवर्सल और, हाँ, उसका मानी क्या है? यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ का मानी क्या है? वेरी गुड, ये तो हर में हर कोई कहता है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। और कोई? वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड, अल्लाह इज वन, ये तो यूनिवर्सल है, हर कोई मान रहा है। सनराइजेस इन द ईस्ट, ये तो हर किसी को मालूम है, क्योंकि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पहले तो लोग नहीं मानते थे। अगर आप भी नहीं मानेंगे तो वो अलग बात है, आपके के सर कहाँ रिवॉल्व होती है? हम तो एक ही जगह हैं, हम तो घूमते नहीं, वो तो अलग बात है। मगर साइंस लोग तो कहते हैं, आप माने या ना माने। वेरी गुड वेरी गुड। एनी अदर एग्जांपल? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, वेरी गुड। इज, यानी कि आपको मैंने कहा यहाँ तो ये इज है, ये मेन वर्ब है। वेरी गुड वेरी गुड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, वेरी गुड। अर्थ इज स्फेरिकल, आप माने या ना माने, आप कहेंगे सर कहाँ ये स्फेरिकल है? फिर तो ये मतलब गोल होनी चाहिए, बाल जैसी होनी चाहिए, ये तो मतलब ये मतलब इक्वल है, वो तो अलग बात है। वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है ये? समझ में आया? हाँ। और वेरी, एक एक इम्पॉर्टेंट खासकर लड़कों के लिए,
बॉयज के लिए, आज तो लड़कियों के लिए भी है मगर खासकर लड़कों के लिए। वेरी गुड। टू गिव commentary or supporting events on some actions which is going on। आप देख रहे हो कि कमेंट्री चल रही होती है जब हम बैट खेल रहे हैं। तो आप मेरी बात समझो, यहाँ समझो, ये इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, किसी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। ये समझो, ये वाला थर्ड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो समझो फर्क क्या है स्ट्रक्चर और यूसेज में। यहाँ आपको समझ में आएगा, यहाँ आपको समझ में आएगा कि फर्क क्या है स्ट्रक्चर और यूसेज में। देखो, अगर बैट क्रिकेट का मैच चल रहा होगा और जो कमेंटेटर होगा वो कमेंट्री कह रहा होगा और वो अपने आंखों से इसी वक्त देख रहा हूँ। मिसाल के लिए, जैसे मैं आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या आप खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। अब मैच वहां चल रहा है, कमेंटेटर जो है वो देख रहा है और वो अब अपने जुबान से कह रहे हैं। अगर हम देखें कि उसको क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, वो तो ये नहीं कहता है ना, ना इसको कहना चाहिए, यानी कि हमें लग रहा है ये गलत है, जो मैं कहने वाला हूँ ये गलत है, ये याद नहीं रखना है, मगर मैं कह रहा हूँ कि हमें लग रहा है कि उसको ऐसा ही कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? मिसाल के लिए, यानी कि बॉलर आ रहा है और बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन इसको हिट कर रहा है और एक प्लेयर जो है वो कैच पकड़ रहा है, यही इसको कह रहा है। हेलो, ओके। अब इंग्लिश में क्या कहेगा वो? अगर हमें लग रहा है, हमें लग रहा है ऐसा कहना है, ऐसा तो नहीं कहना है। फिर से मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कहना है। इसको हमें क्या लग रहा है, क्या कहना चाहिए? द बॉलर इज कमिंग, बॉलर आ रहा है, एंड इज थ्रोइंग द बॉल, और बॉल फेंक रहा है, एंड द बैट्समैन इज हिटिंग इट, देयर इज ए प्लेयर हु इज ट्राइंग टू कैचिंग द बॉल। हमें लग रहा है ऐसा ही होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ये ठीक है, मगर यूसेज के लिहाज से ये गलत है। समझ में आया? फिर उसको क्या, फिर उसको क्या कहना है? फिर उसको कहना क्या है? इसको ये कहना है जो आप मैं कहने वाला हूं। द बॉलर comes and throws the ball, the batsman hits it, there is a player who catches the ball। कैन यू गॉट मी? हेलो, समझ में आया? अब समझ में आपको आया कि कोई किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, सर स्ट्रक्चर और यूसेज में क्या फर्क है? अब वाजिद आपको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। ये कमिटी की तो यही एग्जांपल है, ये मुझे रिपीट करनी है। अगर आप रिपीट करनी चाह रहे हो तो आप फिर से वीडियो देख सकेंगे। अब इसकी एग्जांपल तो यही है। मैंने कहा है कि जो कमिटी हम कह रहे हैं, जो सपोर्टिंग इवेंट। हाँ हाँ, आई विल रिपीट, डोंट वरी, आई विल रिपीट दैट। हाँ, नंबर 4 इज, पहले मुझे ये कंप्लीट करने दो ये रूल्स। नंबर 4 इज टू एक्सप्रेस ऑफिशियल प्लान। ये भी इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर। दैट इज प्लान्स which will go on according to the schedule of timetable and program। देखो, मैंने अभी आपको कहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर किस फ्यूचर के लिए आपको ये याद रखना है? ऑफिशियल, ऑफिशियल, ये यहाँ याद रखना है। ऑफिशियल, ऑफिशियल टाइम टेबल और ऑफिशियल प्रोग्राम। मिसाल के लिए ऑफिशियली मुझे प्रिंसिपल मैंने कहा है, आपको कल श्रीनगर जाना है, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। आप कहेंगे सर हम क्लास लेंगे कल या नहीं? मैं कहूंगा नहीं। आप कहेंगे सर क्यों नहीं? मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू श्रीनगर टुमारो, मुझे कल श्रीनगर जाना है। आई एम गोइंग टू श्रीनगर टुमारो, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी टुमारो बिकॉज आई हैव टू सबमिट योर अवार्ड्स और एनीथिंग एल्स। समझ में आ रहा है? बस 10 मिनट बचे हुए। समझ में आ रहा है? नहीं आया है, नहीं आया है। फार, यानी कि जो फ्यूचर, ये कोई बात नहीं बोलूंगा, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है हम ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई फ्यूचर प्लान होगा जो हमने पहले ही अपने मतलब जहन में रखा है कि हमें ये करना है।
यानी कि हमने पहले ही बोल रखा है। वो नहीं, गलत नहीं हो जाएगा। 1 सेकेंड। आपके कहने, अगर आप कह रहे हैं अगर हम विल इस्तेमाल करेंगे, मिसाल आई विल गो टू श्रीनगर, आपके कहने का मतलब ये है। आपके कहने का मतलब है अगर हम कहेंगे आई विल गो टू श्रीनगर, तो वो भी ठीक है, वो तो फ्यूचर है। मगर मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। आपको और एक चीज याद रखना है यहाँ, और एक चीज आपको याद रखना है। आजकल ज्यादातर आजकल ज्यादातर ये कहते हैं कि दो ही टेंस हैं। आजकल कहते हैं प्रेजेंट और पास्ट ही है, फ्यूचर नहीं है। क्योंकि हम प्रेजेंट और पास्ट को ही इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने थोड़ा मैंने यहाँ एग्जांपल गलत दी थी, क्योंकि मैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एग्जांपल दे रहा था। मैंने एग्जांपल तो दी, मगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी। मुझे, क्योंकि हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, मुझे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल देनी चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? मैंने कहा आई एम गोइंग टू, वो तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो भी ठीक है, मैंने पहले ही आपको कहा है। मगर यहाँ तो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल देनी है। हाँ, मैंने कहा अगर ऑफिशियल ऑफिशियल कोई प्लान, अगर आपका कोई ऑफिशियल प्लान होगा, या आपका मतलब आपका प्लान फ्यूचर के लिए, मतलब आपने फिक्स किया है, मिसाल के लिए योर एग्जाम योर एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, ये ऑफिशियली उन्होंने कहा है। कैन यू गॉट मी? द समर वेकेशन और विंटर वेकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, मिसाल के लिए अगस्त, फ्रॉम जनवरी, यानी कि जो आपने पहले ही फिक्स किया है। मगर ऑफिशियल, ये आपको याद रखना है यहाँ, आपका पर्सनल नहीं, आप पर्सनल, आपके पर्सनल के लिए और कुछ इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसके लिए जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी गलती से, उसके लिए वही, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल होता है। यहाँ आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके लिए होता है इस्तेमाल? ऑफिशियल प्लान ऑफ द फ्यूचर। सर प्लीज एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल आई गो टू जम्मू टुडे। नहीं, आपको मैंने कहा कि आपकी पर्सनल के लिए और कोई टेंस इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए, ये नहीं। मैंने कहा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर ऑफिशियल होगा तो ऑफिशियल के लिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, और क्या है? टू एक्सप्रेस ग्रेट राइटर्स सेइंग, अगर कोई अच्छा सा राइटर होगा, जो उसने कहा होगा, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर उसने पास्ट में ही कहा है, हम कहते हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है। नहीं, ये ठीक नहीं है। आवर एग्जाम बिगिनर्स, अगर अगर ये ऑफिशियली होगा, हाँ ये भी ठीक है, अगर ये ऑफिशियली है ये भी ठीक है, क्योंकि मतलब ये ऑफिस ने किया है नोटिफिकेशन, अगर उन्होंने किया है तो ठीक है। समझ में आ रहा है? जिसने ये एग्जांपल सेंड किए हैं इनबॉक्स में, ये भी ठीक है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके लिए इस्तेमाल होता है? अगर कोई अच्छा सा आदमी हो, कोई ग्रेट पर्सनालिटी होगी, अगर उसने पास्ट में कोई बात कही है, हम उसको प्रेजेंट में लिखते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे थे। कैन यू गॉट मी? हम ऐसे कहते हैं कीट सेज ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। कैन यू गॉट मी? यहां तक समझ में आया? हाँ, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी फिर भी आप ये वीडियो देख सकेंगे। जिसको समझ में नहीं आया है, वो ये वीडियो देखने के बाद मुझे कहेगा सर हमें फलानी जगह समझ में नहीं आया है। अब मैंने 1 सेकंड, मुझे तो उर्दू करने में थोड़ा दिक्कत होती है। अब क्या करेंगे आपकी आसाइश के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया है, वरना तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है उर्दू कहने में। हाँ, देखो मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि जो आज हमारा टॉपिक है वो है यूसेज ऑफ टेंस। मैंने पहले कहा है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जो काम हम डेली बेसिस पर करते हैं।
मैंने कहा उसके साथ ज़्यादातर ऑलवेज होता है, ऑफन होता है, सेल्डम होता है, यूजुअली होता है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, नॉर्मली, ट्वाइस, थ्राइस ए वीक होता है। और मैंने कहा है ये इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ। कोई जो हर कोई मानता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। कोई फिर एक बंदा या दो बंदे माने या ना माने वो अलग बात है, मगर जो ज़्यादा लोग मानते हैं यूनिवर्सली। और फिर मैंने कहा है कि जो सपोर्ट्स में हम कमिटी कहते हैं उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। वहाँ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है, वहाँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल नहीं करना है। और मैंने कहा है और अगर आपके टाइम टेबल या ऑफिशियल प्लान्स फ्यूचर के बारे में होंगे तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। और मैंने कहा है कि अगर कोई ग्रेट पर्सनालिटी होगी उसने कुछ कहा होगा इसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। I think that it is sufficient for today. Thanks. I think that